اب لہجہ بدلا ہوا ہے، ابھی لہجے میں نرمی تھی، اب تھوڑا سا سختی آئی ہے، اس حکم کو پہنچائیے۔ اگر آپ نے اس حکم کا اعلان نہیں کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں انجام دیا۔ خدایا اتنی محنت رسول نے کی ہے، پتھر کھائے ہیں، کانٹوں پہ چلے ہیں، لوگوں کے تانے سنے ہیں، کیا کیا نہیں رسول کو کہہ دیا گیا ہے، معاذ اللہ ہذیان بکنے والا بھی کہہ دیا گیا ہے۔ ان سب کا صلہ تو یہ دے رہا ہے کہ اگر ایک بات کا حکم نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا، یعنی شریعت کا کوئی احکام ہی نہیں پہنچایا، نماز کا کوئی حکم ہی نہیں پہنچایا، روزے کا فلسفہ ہی نہیں بتایا، حج کی جو تاثیر ہے وہ نہیں بتائی، شجاعت میں کیا چاشنی رکھی گئی ہے اس کا فیصلہ نہیں سنا ہے، کوئی چیز ہی نہیں بتایا، تو آواز قدرت آئے گی۔ اسے عام اعلان نہ سمجھنا، یہ ایسا اعلان ہے جس پہ آدم کی نبوت بھی ٹکی ہوئی ہے، یہ ایسا اعلان ہے جس پہ نوح کی بھی نبوت ٹکی ہوئی ہے، یہ ایسا اعلان ہے جس پہ عیسیٰ کی بھی نبوت ٹکی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ، آدم سے لے کے خاتم تک آپ تک کی نبوت اس پہ ٹکی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ اعلان صرف اعلان نہیں ہے بلکہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، تاکہ زمانہ دیکھ لے اگر ہم تک پہنچنا ہے تو علی کی ولایت کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ ہم تک نہیں آ سکتے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد سمجھے، یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے کہ ہم چوراہے پہ کھڑے ہو گئے شاہی اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ایسے ہو جائے گی، فلاں چیزیں کل سے یہ ہو جائے گی، نہیں، یہ اس کا اعلان ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔ اعلان ہو گیا، ظاہر سی بات ہے جو بھی بچ کے لوگ ہیں وہ تو اعتراض کریں گے، کہیں نہ کہیں سے غلطی نکالیں گے، یہ آج بھی یہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ اچھا کام کر کے دیکھیے، آپ کا کوئی بھی بچ والا ہوگا، بس کچھ نہ کچھ غلطی ڈھونڈے، بس ایک غلطی مل جائے، جناب کی جو عمارت کھڑی ہے زمین دوست نہ کر دے تو کہنا یہ ہوتا ہے، صرف ایک غلطی مل جائے، بس وہی غلطی ڈھونڈ رہے تھے، نہیں مل سکتی، غلطی ہوگی کہاں سے؟ آج رسول نے صرف علی کا ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، آج اسد اللہ بنا ہوا، غلطی کہاں سے ہونے والی ہے؟ لوگ غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ملا تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب اعلان ہو رہا تھا تو ظہر کا وقت تھا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں صبح کا وقت تھا، کوئی کہہ رہا ہے شام کا وقت تھا، اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ اعلان کس وقت ہوا ہے، ہمیں وقت سے مطلب نہیں ہے، ہمیں جو مطلب ہے وہ امام وقت سے ہے، ہمیں وقت سے لینا ہی دینا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وقت کے محتاج ہیں، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے، یہ جب چاہتے ہیں اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، یہ جب چاہتے ہیں ستارے کو در پہ بلا لیتے ہیں، یہ جب چاہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ محتاج نہیں ہے۔ علامہ محسن بھی شہید نے بہت اچھا جملہ اس چیز پہ کہا تھا، ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ جب ولایت علی کا اعلان ہو رہا تھا وہ وقت صبح کا تھا، دوپہر کا تھا، شام کا تھا، رات کا تھا، اس سے مطلب ہی نہیں ہے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا نبوت کی شام ہو رہی تھی، امامت کی صبح ہو رہی تھی۔ بات ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا بہت آگے ہے، کوئی بھی چیز آپ کو معلوم کر دوں وہاں سے معلوم کر لیں، ہر چیز مل جائے گی آپ کو وہاں سے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، شریعت کے خلاف کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، ایک سے ایک ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ ضرورت ہے جذبات میں آ کے کمنٹ نہ کریں، ضرورت ہے صبر کا۔ صبر ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے وار میں آواز نہیں ہے، لیکن جب وہ صبر وار کرتا ہے تو بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب صبر نے شام کے دربار کو زمین دوز کر دیا ہے تو آج لوگ کیوں یہ کر بھول گئے ہیں کہ جب عزاداری امام حسین علیہ السلام شام کے دربار میں یزید نہ روک سکا ہے تو آج کے دور میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کیسے روک سکتے؟ اس لیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے ہم ضامن نہیں ہیں، یہ ضامن ہے، یہ جانتے ہیں عزاداری
अजादारी किस तरह करवाना है, ये जानते हैं कि हमारा पैगाम किस तरह पहचानवाना है, ये जानते हैं किस तरह से अपने जद का मातम करवाना है। इमाम इसके ज़ामिन है, इसीलिए इमाम ने कहा देखो अजादारी करो, घबराओ मत। इसलिए इसी बात पे आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने कहा था जब भी तुम मातम करो तो इस बात का खौफ ना करो कि सामने वाला क्या कह रहा है कि देखो कितनी तेज मातम कर रहे हैं। जब भी कोई रोके ना तो आओ तेज मातम करो, इसलिए कि ये जो मातम है तुम्हारे सीनों पे नहीं पड़ते, यजीदियत के मुंह पे तमाचे पड़ते हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझे फलसफा मातम क्या है, समझे फलसफा अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। हुक्म पहुंचा दिया गया है, लोगों के दरमियान ऐलान कर दिया गया है, लोग आके मुबारकबाद भी दे रहे हैं, या अली मुबारक हो, आप हमारे मौला बना दिए गए, मोमिनीन के मौला बना दिए गए, मोमिनात के मौला बना दिए गए, बखिन बखिन लगा या अली, मैं अली मुबारक हो। सब ने मुबारकबाद दी, अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी मुबारकबाद दी है, औसिया अलैहिस्सलाम ने भी मुबारकबाद दी है, तमाम जिन्नात ने सामने मुबारकबाद पेश की। जाहिर सी बात है ये हमेशा तो दुनिया को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए, देखो विलायत अली अलैहिस्सलाम एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी चीज़ कबूल नहीं है। हम लाख सजदों पे सजदे करते जाए, लाख रुकू पे रुकू करते जाए, लाख कुनूत पे कुनूत पढ़ते जाए, कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हमारे दिलों में, हमारी इबादतों में इनके वसीले ना शामिल हों, इनकी मोहब्बतें ना शामिल हों। याद रखें 1000 साल की इबादत बगैर इनकी मोहब्बत के काबिल कबूल नहीं है। एक लम्हे का सजदा इनकी मोहब्बत में किया जाए तो वो सजदा उसकी बारगाह में याद रखा जाता है। समझे, इनकी मोहब्बत दिल है तो मोहब्बत का तकाजा भी है कि महबूब की खिदमत मानी जाए। जाहिर सी बात है हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम ज़रूरत यही समझते हैं कि उससे बेलौस मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत की जाए कि दुनिया समझे कि हाँ, दुनिया तारीफ करे, हमारी मिसाल पेश करे कि देखो फला शख्स ऐसी मोहब्बत करके चला गया तो हमें भी मोहब्बत करना है। तो ऐसी मोहब्बत करें इमाम से। आज इमाम जाहिर नहीं है हमारे लिए, हमारे आंखों में पर्दे पड़े होते हैं कि इमाम की ज़्यादत नहीं हो सकती है। अक्सर जितनी भी मजलिसें आप सुनेंगे, अक्सर हमारा मौजूद खासतौर से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए होता है। ज़रूरत भी है इस बात की, इसलिए कि अगर हमें करबला तक पहुँचना है तो पहले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी है। मसलन अभी हमें आपके घर जाना हो, हम बगैर आपके घर में दाखिल हो सकते हैं? तो जो वारिस है वही लेके जाएंगे हमें। पहले हम इमाम से मुलाकात कर लें, वो खुद हमें करबला लेके जाएंगे। पहले हम वैसा बन जाए जैसा इमाम चाहते हैं, इंशाअल्लाह इमाम हमें करबला लेंगे। किसके दिल में तमन्ना नहीं है कि करबला ना जाए? जब भी हम लोग देखते हैं नजफ से करबला की मशीद तो दिल यही चाहता है काश हम भी इस काफिले में शामिल होते। इस वक्त वो रौनक नहीं है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग हैं जा रहे हैं। आप वीडियो देखें, वीडियो आ रही है आजकल, जो वहाँ के लोग हैं। अभी जल्दी एक 2-4 दिन पहले वीडियो आई थी कि एयरपोर्ट पे बैठ के लोग वहाँ के रो रहे थे, यह ज़वारे इमाम हुसैन इस्लाम कहाँ हो? क्या इस साल इमाम की ज़ियारत के लिए नहीं आओगे? क्या हमें वो खिदमत का मौका नहीं दोगे? जब जुलूस हमारे दरवाजे पे आता है तो हम घरों से बाहर आ जाते हैं ना, फिर फिक्र नहीं रहती कि घर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे ही कंडीशन वहाँ हो जाती है जब ज़ाहिर इमाम हुसैन इस्लाम का सफ़र शुरू होता है। लोग अपने अपने घर छोड़ के निकल आते हैं बाहर। कोई टेंट लगाए हुए हैं, कोई सबील लगाए हुए हैं, कोई चाय का इंतज़ाम किए हुए हैं, कोई खाने का इंतज़ाम किए हुए हैं, कोई पानी, जिसके पास कुछ नहीं है वो एक छोटा सा गिलास रख के पानी भरे हुए, एक घूंट पानी पी लो, एक ही घूंट पानी पी लो प्यासों की याद में। आओ आओ यार, यकीन मानिए गाड़ियों के सामने लोग लेट जा रहे हैं। जो लोग गए हैं वो खुद जानते होंगे कि जब तक यहाँ आके हमारे यहाँ का एक लुकमा नहीं खा लोगे, याद रखो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। एक छोटा सा 2-3 साल पहले का वाकया है, हमने सोशल मीडिया पर पढ़ा था गालिबन कि जिला कौशाम्बी का शायद वाकया हो। हमने पढ़ा था कि उस वक्त दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ में थे।
तो उसी पंडाल से जुलूस भी निकल रहा था। जब जुलूस आगे निकला, देखे मोहब्बत क्या होती है। वाकई अगर किसी के दिल में इमाम की मोहब्बत आ जाए तो फिर मजहब आगे नहीं आता है, फिर बेलौस होकर लोग मोहब्बत करते हैं। आइए करबला में आज भी आगे देखिए, वहाँ पे गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, यहूदी भी आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। आते हैं तो मालूम नहीं होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है, लेकिन जब पलट के जाते हैं तो हमसे कहीं बेहतर जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या है। आप तारीख देखें, आप रवायतें देखें, सिडनी की जुलूस देखें, ऑस्ट्रेलिया के जुलूस देखें, उन्हें कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जब लोगों ने बताया कि हम क्यों रो रहे हैं, एक एक घंटा वहाँ के लोग रोए हैं जो कभी जुलूसों में शिरकत नहीं करते, जो मजलिसों में नहीं आते, वहाँ के लोग रोए हैं। वो जानते हैं कि दर्द क्या है, वो जानते हैं कि तकलीफ क्या है। तो जब जुलूस निकलने वाला था, जैसे ही जुलूस पंडाल से होकर निकला है, तो वहाँ जो लोग इकट्ठा थे जुलूस के आगे आके खड़े हो गए। आने के बाद कहते हैं, अब मसलन यहाँ से जुलूस निकले, कुछ लोग आके जुलूस का रास्ता रोक लें, क्या गुजर जाएगी हम पे, यही ना खौफ होगा कहीं कोई मसला होना हो जाए। उन लोगों ने एक जुमला कहा कि उस वक्त तक हम जुलूस को आगे नहीं जाने देंगे जब तक आप बाबा हुसैन के 6 महीने के बच्चे का नौहा नहीं सुनाएंगे। मोहब्बत देखिए, जब तक आप बाबा हुसैन के 6 महीने का बच्चे का नौहा नहीं सुना देंगे, हम यहाँ से जुलूस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। नौहा बढ़ा गया है, लोगों ने गिरिया किया है। देखिए करबला सबके लिए है। हमने कहा था कि हमने ये कब कहा कि हमारी है करबला, हम बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। आओ करबला हम बताते हैं तुम्हें क्या है। करबला में तुम्हें मसाइब भी मिलेंगे, रो देना। तो करबला में तुम्हें शुजाअत भी मिलेगी, देख लेना। करबला में तुम्हें सब्र भी मिलेगा, ऐसा सब्र मिलेगा, ऐसा सब्र मिलेगा। इस ज़ैनबिया पे जनाब ज़ैनब खड़ी होकर देख रही है, और ऐसी शुजाअत मिलेगी, ऐसी शुजाअत मिलेगी कि 6 महीने का बच्चा भी अगर मुस्कुरा दे तो फौजे यजीद मुंह फेर फेर के रोती हुई नजर आती है। ऐसा सब मिलेगा माओ के। आज हम परेशान हो जाते हैं तो माएँ परेशान हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, हमारा लाखों सलाम हो करबला की माँ को। ना जाने उन्होंने कैसे सब्र कर लिया है। मामूली बात है कि माँ के सामने बच्चे को ज़िबा कर देना, मामूली बात है माँ के सामने बच्चों के सरों को नेज़े पे बुलंद कर देना, मामूली बात है माँ के सामने बच्चों को भूखा और प्यासा कत्ल कर देना, मामूली बात नहीं है। हम सिर्फ सुन लेते हैं, बस रह जाते हैं। लेकिन जो लोग देख रहे थे उस वक्त क्या हो रहा है, वो जानते होंगे करबला में क्या हो रहा है। कल इमाम का चेलू में 40 रोज गुजर गए इमाम को शहीद किए हुए। आज अदारे इमाम मुस्लिम करबला, बहुत जल्द ये दिन भी 10-15 रोज गुजर जाएंगे, इमाम हमसे रुखसत हो जाएंगे। हक के गिरिया ना अदा हुआ था, ना कभी हो पाएगा। हम पूरी जिंदगी इमाम पे गिरिया करते रहे। याद रखिए, वो उस आंसुओं का बदल नहीं हो सकता जो शहजादी सैयदा ने वक्त कत्ले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम के गले पे अपने आंसुओं को गिराया होगा। उसका बदल हरगिज नहीं हो, एक कतरे आंसू का बदल नहीं हो सकता। आज़ादार इमाम मज़लूम करबला, बस आखिरी जुमले हैं और असबाब रहमत तमाम है। आज़ादारों, जब रिहाई पाक के अहले हरम आए हैं, आने के बाद जब करबला के मैदान में पहुंचे हैं तो रसूल के साहबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी पहले से इमाम की ज़ियारत के लिए आए थे। जब आए हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं, मौला सज्जाद से मुलाकात हुई है, सलाम हुआ है, ए मौला खैरियत तो है। ए जाबिर, कैसे सवाल कर लिया। ए जाबिर, खैरियत हो सकती है जिसके भाई के सीने में बर्छी की अनी पेवस कर दी गई हो, जिसके चचा के बाजू कलम कर दिए गए हो। ए जाबिर, जिसके बाबा को 3 दिनों का भूखा और प्यासा मार दिया गया। ए मौला, अच्छा बताए क्या गुजर गई। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि मौला ने एक दफा कहा, ए जाबिर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर हट जाओ। ए जाबिर, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से दूर चले जाए। जाबिर ने हाथों को जोड़ लिया, है मौला, कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ फरमा दे। कहा, नहीं जाबिर, कोई गलती नहीं हुई है, शहजादी ज़ैनब आ रही है अपने भैया की कब्र पे। ए जाबिर, जल्दी से आप यहाँ से हट जाइए। जैसे ही शहजादी ज़ैनब आई है, अपने आप को मौला हुसैन की कब्र पे गिराया है। गिराने के बाद गिरिया करना शुरू किया। ए भैया, आपने देखा कैसे मुसीबतें हमने बर्दाश्त की है। ए भैया, लेकिन एक चीज का मलाल दिल में रह गया। ए भैया, आपने जो अमानत हम तक पहुंचाई थी, वो अमानत हम सही और सालिम नहीं ले आ सके। ए भैया, उसे तमाचे मारे गए। ए भैया, गोशवारे छीने गए। ए भैया, इतने तमाचे मारे गए हैं कि गालों का रंग करबला से कूफा और शाम तक बदलता रहा। ए भैया, हमने उसी कफन में उसे दफनाया। ए भैया, कोई कफन
اللهم كن ولي بالفضل من حسن صلوات الله بما آمين وعافنا 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 ودلينا وعينا حتى تصله وأن